Good morning, dear students. I hope you are keeping absolutely well at home. I am Purnima Tomar, your maths teacher. Again, welcomes you on my YouTube channel KVS Mathematics. So, it's been a long time that I have uploaded any video, but from today, I will be uploading the complete NCERT, all the chapters for class 10. Okay, so here today I am starting from chapter 3, that is pair of linear equations in two variables. Okay, I will upload chapter 1 and 2 after some time. Okay, so today we are going to discuss about the pair of linear equations in two variables. So you have a basic idea from 9th standard about the linear equation. Okay, so you have learned linear equation in one variable and linear equation in two variables. Okay, now we are going to discuss about the pair. Pair means two. Okay, pair means two. It means we are going to discuss two equations simultaneously which are linear in two variables. Okay, so this we have to do. We will learn about the pair of linear equation in two variable, their general form. Okay, I'm telling you what we are going to do in this chapter. So please watch the complete video, all the concept, because video के बीच में I will be telling any important point, any important note that is essential to answer the questions, to answer the objective type questions. So you should watch the complete video till the end. Okay. So we will be discussing the pair of linear equations in general form, their general form. Then what the graphical representations of these equations means, what these equations graphically indicate, and after that we will be finding the solutions for these equations. Okay, by different methods, that is substitution method, okay, elimination method, cross multiplication method. All the three methods are very important. So whenever we are getting the two equations, linear equations, or we can say pair of linear equations, we will be using one of these three methods to solve them. And at the end we will deal with the equations reducible to a pair of linear equation in two variables. Okay, so this is the most important chapter from the examination point of view, from the board's point of view. So please from the beginning try to focus on each and every minute details and try to learn the concepts carefully. Okay, so now moving further, what we have whenever we talk about an equation, so whenever we talk about an equation, it means we are saying something that there is something on the LHS left hand side and something on the RHS. Okay, means anything or any expression that is having an equals to, means you can say it becomes an equation. Okay, जब किसी एक्सप्रेशन में, किसी algebraic एक्सप्रेशन में हम इक्वल टू का यूज करके उसको इक्वेट करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन वी से इट एन इक्वेशन. ओके, तो जैसे कि आपका सी यू हैव x plus 5 is equals to 2, 25. Okay, so if you have x plus 5 is equals to 25 like this, so it is an equation. ठीक है ना, ये आपकी एक equation है. It is an equation. When you have this x plus 5 is equals to 25, it is an equation. तो अब ये equation है, ये LHS है इसका, this is the RHS, this is LHS, this is RHS. मैं इसको solve करना चाहती हूँ, तो मैं x की वो value find करती हूँ जिसके लिए satisfy हो जाए. 25 minus 5 x is equals to 20, ये मेरे पास वैल्यू निकल जाती है. तो ये मेरी एक इक्वेशन थी और ये इक्वेशन थी इन वन वेरिएबल. ठीक है, क्लास 10 में आपको बिल्कुल बेसिक से, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये 7th 8th स्टैंडर्ड में यू हैव गॉन थ्रू इट, बट मैं आपकी वो मेमोरीज रिफ्रेश करना चाहती हूँ ताकि आप जो अब करने जा रहे हैं आपको बेसिकली पता हो कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, आपको उसका बेसिक पता है और आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी. ओके, इसको हमने लीनियर इसलिए बोला
because you know that these expressions, these polynomials, these algebraic expression, these are all interconnected. Okay, तो हमने इसको लीनियर इसलिए बोला क्योंकि इसमें वेरिएबल x प्रेजेंट है जिसकी पावर 1 है. द पावर ऑफ दिस वेरिएबल x इज 1. दैट्स वाई इट इज अ लीनियर. ये सिंगल वेरिएबल था. बट when I write an equation x plus y is equals to 5. Okay, so this x plus y equals to 5, it is an equation containing two variable. आपको क्लियर है, इसमें x वेरिएबल है एंड y वेरिएबल है. टू वेरिएबल्स है, इक्वेशन है, सो इट इज वन इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इक्वेशन इन टू variables. Okay, this is an equation in two variables. Now in the 9th standard you have learned that आपकी ये एक इक्वेशन है टू वेरिएबल में, तो आप इसको ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है. यू नो दैट ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन. ठीक है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. मतलब अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 को ग्राफ पर प्लॉट करना चाहूँ, ठीक है ना, आई विल प्लॉट इट ऑन ग्राफ, देन इट विल बी अ लाइन. मीन्स यू विल हैव दिस, आई एम ड्रॉइंग अ रफली थिंग. ओके, सो व्हाट यू विल डू, ये प्लॉटिंग मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी. यू आर हैविंग x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. सो x एंड y हम क्या करेंगे, प्लॉट करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए क्लास 10 ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे कोई भी आपसे कहे कि ये इक्वेशन ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाइए, तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं. मिनिमम 2 पॉइंट्स नीडेड होते हैं टू प्लॉट अ लाइन, टू प्लॉट एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन द ग्राफ. मिनिमम मुझे टॉप 2 पॉइंट्स चाहिए. मैं 3 पॉइंट्स भी यूज कर सकती हूँ, 4 भी, बट मिनिमम 2. और 2 पॉइंट्स निकालने का सबसे ईजी मेथड होता है. हाउएवर हम इक्वेशन पर भी डिपेंड करता है. कई बार हमें जो 2 पॉइंट्स मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी, इनके अलावा और पॉइंट्स लेने पड़ते हैं टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन क्लियरली कि बेसिकली वो कैसे लाइन बनेगी. ठीक है ना. बट एक सिंपल सा डायरेक्ट मैनर ये होता है कि आप एक बार एक वेरिएबल को 0 पुट कर दीजिए और एक बार दूसरे वेरिएबल को. मीन्स दिस इक्वेशन आई हैव टू प्लॉट एंड what I will do, just put x is equals to 0. What you will get here, solving this, you will get y is equals to 5, and when you put y is equals to 0, the x is equals to 5. You will get this. तो आपका 0 5 means ये 0 है, इधर 1 2 3 4 5. These are equidistant. Okay, I'm just making a rough diagram to make you understand. So 1 2 3 4 5. So दिस पॉइंट इज 0,5. मतलब मेरे क्या पॉइंट्स निकल के आए जो मुझे प्लॉट करने हैं, 0,5. यू नो दैट दिस इज एब्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट. ओके, एंड 5,0. ये 2 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. सो 0,5 पॉइंट इज हेयर एंड 5,0, सॉरी 5,0 पॉइंट इज दिस इज 5 एंड y इज 0. ठीक है, एंड 0,5 मीन्स x इज 0 एंड y इज 5. मीन्स दिस विल बी ऑन द y एक्सिस. ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. ओके, कौन सा पॉइंट x एक्सिस पे होगा, कौन सा पॉइंट y एक्सिस पे, एंड मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी. दिस इज ओनली अ रफ डायग्राम एंड इट मेक्स अ लाइन. दिस इज अ लाइन, दिस इज द graph of x plus y is equals to 5. So I have taken a simple equation only to recall the plotting of a linear equation in two variable on the graph. ठीक है ना. तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है, क्लास 10 एक इक्वेशन है आपके पास, तो उसको ग्राफ पर प्लॉट करने का तरीका आपका दिस इज द वे. ओके, तो आपने एक इक्वेशन को प्लॉट कर दिया, आपको मैं 2 इक्वेशन दूं, 3 इक्वेशंस दूं, आप उसको ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं इजीली. यही मैनर रहेगा. दिस इज द बेसिक मैनर. ओके, सो दिस इज दिस. नाउ मूविंग फर्दर, So now moving further, I have written here 2 points, 2 important points. आप properly notes बनाएंगे, ठीक है, these explanation and these points, and by understanding the concept. Okay, so first point that I have written is an equation of the form ax plus by plus c is equals to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0, is called linear equation in two variable x and y. यहाँ पर अभी तक मैं सिर्फ एक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. I have not discussed पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है ना, मैं एक इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, और ये आप 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं. यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो.
सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म होता है एक लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए और आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक और कंडीशन है दैट ए एंड बी आर नॉट बोथ 0। ए और बी दोनों ही 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बी 0 हो गया तो वाई नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक वेरिएबल एक्स प्रेजेंट होगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रह जाएगी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना। सो ए और बी दोनों ही नॉन जीरो होने चाहिए, सी हो सकता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। वेरिएबल्स हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं, पी क्यू भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। ओके, जनरल फॉर्म विल रिमेन लाइक दिस ओनली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और आपके एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर 1 है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। So second point is every solution of the equation is a point on the line representing it. आपको पता है कि एक इक्वेशन को, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मैंने इस तरीके से ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया। ये क्या कह रहा है? एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 जो है ना, इसका हर एक सोल्यूशन पता है क्या है? एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट, हर एक सोल्यूशन इसका एक पॉइंट है ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। मतलब किसी भी इक्वेशन को, इस पॉइंट को दिमाग में रखना हमेशा क्लास 10 और अच्छे से समझना। किसी भी इक्वेशन को जब मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करती हूँ, और जब मैं इक्वेशन बोल रही हूँ तो आप समझ जाइए कि हम टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं टू वेरिएबल की किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करती हूँ, तो उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन हर एक वो पॉइंट है जो उस लाइन पर प्रेजेंट है। मतलब जब मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को रिप्रेजेंट किया तो ये एक लाइन ड्रॉ हुई इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा बाय द ग्राफ दैट आई कैन फाइंड, ओके, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, एवरी माइन्यूट पॉइंट, आपको पता है कि लाइन पॉइंट से मिलकर के बनी है, तो एवरी माइन्यूट पॉइंट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना। इसीलिए आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एंड वी से दैट, क्या कहते हैं हम, ये आप पहले समझ चुके हैं, दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 1 मार्क में या फिल इन द ब्लैंक्स में यू कैन गेट दिस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज infinitely many solutions. ओके, सो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इसकी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है? क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और लाइन कितनी भी मैं ड्रॉ कर लूँ, कितनी भी लंबी मैं खींच सकती हूँ यहाँ पर, कितने भी देन जितने जो भी पॉइंट्स होंगे, दीज आर द सोल्यूशन। जो भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर, वो सब सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, तो हम कहते हैं कि दीज है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये आपका एक इक्वेशन को टू वेरिएबल में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी आती है कि आई एम टॉकिंग अबाउट 2 इक्वेशंस। जब हम 2 इक्वेशंस को, 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन है, ऐसी 2 इक्वेशंस को एक साथ कंसिडर करके चलते हैं क्लास 10, देन वी से इट एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब जो कुछ भी एक इक्वेशन के साथ आपने किया, जैसे एक इक्वेशन को समझा, वही सब कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ होना है। जस्ट पेयर का मतलब ये है कि वी आर डीलिंग विद द 2 इक्वेशंस एट अ सिंगल टाइम। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली द जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 variables. Okay, and also you can refer to your NCERT book, page number 39, 40, 41. These are the important pages. You can go and you can thoroughly read them to understand the concept in a better way. Okay, so class, this is the general form for a pair of linear equations in 2 variables x and y. Okay, तो जब हम 2 pairs की, अभी मैंने आपको बताया था ax plus by, है ना, what I have explained you that ax plus by plus c is equals to 0, ऐसे मैंने एक इक्वेशन को लिखा था, जनरल फॉर्म को। ठीक है, जब हम 2 इक्वेशंस को डील कर रहे हैं, सो बस जस्ट टू डिफरेंशिएट देम, हमने a1 a2 वेरिएबल्स को, मीन्स ये रियल नंबर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 ले लिया है, नथिंग एल्स। ओके, तो एक इक्वेशन का फॉर्म वैसा ही है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0,
दूसरी इक्वेशन को हमने कंसिडर कर लिया, लेट इट बी a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers and a1 square plus b1 square is not equals to 0 and a2 square plus b2 square is not equals to 0. इनका कहने का मतलब ये है that these a1 b1 a2 b2 these are not equals to 0. ओके, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो वही जो एक इक्वेशन के साथ कंडीशंस थी सिंगल इक्वेशन के साथ, वही टू इक्वेशंस के साथ है, बस ये इक्वेशंस टू इक्वेशंस को हम डील कर रहे हैं. सो वी से देम एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. नाउ in the 9th standard, in the previous standard, you have learned that whenever you are having two lines in a plane, ठीक है, एक प्लेन में, एक कार्टेशियन प्लेन में या एक प्लेन में आपके पास टू लाइंस होते हैं, टू लाइंस हैं, तो उनकी देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज ओनली. ठीक है ना. टू लाइंस हैं एक सिंगल प्लेन में, एक प्लेन में टू लाइंस हैं, तो उनकी क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं. द टू लाइंस, मैं रफली डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है. या तो सपोज दिस इज अ लाइन एंड अनदर लाइन, या तो वो टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं. ठीक है. एंड यू नो वेरी वेल दैट टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट अ सिंगल पॉइंट. अगर हम इंटरसेक्ट की बात करें, इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को काट कर निकल जाना, तो वो सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं. ठीक है. टू लाइंस स्ट्रेट, टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं. तो या तो वो इंटरसेक्ट कर जाएं, दिस इज द फर्स्ट केस. टू लाइंस हैं, या फिर वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएं. ठीक है. कोइंसाइड मीन्स दिस इज द लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन, और इसी के ऊपर, इसी के जस्ट एकदम एग्जैक्ट ऊपर सेकेंड लाइन हो. कोइंसाइड. ठीक है ना. ये आपका था इंटरसेक्ट करना. दिस इज कोइंसाइड मीन्स एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन. और थर्ड केस आपका हो सकता है दैट दीज टू लाइन्स, दीज आर रफ डायग्राम, ओके ना, एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. मतलब कि वो पैरेलल लाइन्स मीन्स कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. मैं इसको इन्फिनिटी तक ड्रॉ कर दूं, ये पैरेलल लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो टू लाइन्स, वेन एवर यू हैविंग द टू लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन्स इन अ सिंगल प्लेन, देन देयर कैन बी वन ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज. इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो वो टू लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या वो टू लाइन्स कोइंसाइड करेंगी, या वो टू लाइन्स पैरेलल होंगी. ओके. सो जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि इन दो इक्वेशंस का जब ये इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइनें, तब क्या होता है, जब कोइंसाइड करती हैं तब क्या होता है, पैरेलल होता है तब क्या होता है. ओके. हमें आगे जो सेक्शन में पढ़ना है इस चैप्टर में, वो यही पढ़ना है कि जब इंटरसेक्ट करती हैं तब क्या होता है, कोइंसाइड करती हैं तब क्या होता है, पैरेलल होती हैं तब क्या होता है, और इनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं. सी मीन्स वी विल, ये हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, इट विल बी बेटर. तो इनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं. ठीक है ना. मतलब टू लाइंस, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन देयर इज अ सिंगल सॉल्यूशन. मैं आपको वन लाइन में बता रही हूँ. व्हेन टू लाइंस, two linear equations coincide, there are infinitely many solutions. And when two linear equations are parallel, ठीक है ना, these two lines are parallel, so there is a condition of no solution. ओके ना, there is a condition of no solution. आगे आने वाली सेशंस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन वन लाइन. नाउ मूविंग फर्दर विद दिस चैप्टर. So class 10, this is page number 40 of your NCERT book. Okay, I have explained you these things. I want you to go through these lines and read them so that you can understand. You can go through the example. Although I have explained that thing, मैंने एक छोटी सी x plus y is equals to 5 इस इक्वेशन को लेकर के वो बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आप एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और उससे रिलेट करेंगे, इट विल हेल्प यू. ओके. Then example 2, example 3. In all these examples, they are showing the condition कि two lines हैं तो वो coincide कर जाती हैं, या two lines हैं वो parallel हैं, two lines हैं intersect कर रही हैं. उन्होंने दोनों equations को plot किया है. ठीक है. तो आप example 1, example 2, example 3 को read करेंगे. ठीक है. You will understand them. In the next class, I will ask you in the questions. Okay. I will ask you questions. So this is basically for my school's student.
तो मैं आपकी ऑनलाइन लाइव क्लास में क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू पुट क्वेश्चंस ऑन दीज. ओके, नाउ इतना कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट सेक्शन, section 3.1 and section 3.2. Now in the after this there is exercise 3.1. Okay, exercise 3.1, there are 3 questions only and we are going to discuss them. Okay, in the next class we will have graphical method of solution of a pair of linear equation. जो मैंने आपको बताया है अभी कि 2 lines will be, see these are the condition and they will be intersecting, coincident, parallel, और solutions क्या होंगे इनकी, exactly one, infinitely many, no solutions. So these in the next section 3.3 section we will discuss further. For now let us discuss exercise 3.1. So in this exercise 3.1 they are basically want you to present the given situation algebraically and geometrically. Means algebraically means आपको equation में, algebraic expression में represent करना है and graphs draw करने हैं graphically. ठीक है, to represent graphically. All the 3 questions are similar. Okay, and I want you to give a try. I'm discussing first question only for now. The first question is Aftab tells his daughter. आफ्ताब अपनी डॉटर को बताते हैं 7 years ago I was 7 times as old as you were then. मतलब अब से, प्रेजेंट से 7 years पहले मैं तुम्हारे जितने तुम 7 years पहले थी तुम्हारे 7 times था. Also 3 years from now, अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, तो मैं अब से 3 साल बाद तुम्हारे जितने तुम होंगे उसके 3 टाइम्स ओल्ड होऊंगा. तो सबसे पहले मुझे 7 साल पहले की इक्वेशन चाहिए, 3 साल बाद की चाहिए. तो मैंने प्रेजेंट एज को, जो मुझे मेरा प्रॉब्लम है, दैट इज प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर. ओके, तो मैंने वो लेट कर लिया. प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल्स टू y. ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 7 इज द एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago. ठीक है, प्रेजेंट एज, अगर आपकी प्रेजेंट एज 16 years है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 16 minus 7. ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया. सो x minus 7, तो और डॉटर की एज y minus 7, 7 years ago वाली, हम पहले वाली की बात करें, पास्ट की, तो उसने क्या कहा था कि I was 7 times as old as you. वो था इक्वल्स टू 7 times of his daughter. बस इतना ही मैंने किया. आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो इज, वॉज वगैरह यूज होता है, जैसे जैसे लिखा है उसको वैसे वैसे कन्वर्ट करना होता है. तो 7 times I was, he is equals to 7 times his daughter. ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लिकेशन किया, आपने लिख दिया दिस इज इक्वेशन 1. उसने फ्यूचर के बारे में क्या बोला है, आफ्टर 3 years. तो 3 years के बाद आफ्ताब की एज क्या है, x+3, डॉटर की एज क्या है, y+3. उसने कहा I will be 3 times as old as you. तो x+3 is equals to 3 into y+3 हो गया. सिंप्लीफाइंग, सॉल्विंग, आई एम गेटिंग हेयर इक्वेशन 2. तो ये आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यू शुड गिव अ ट्राई. इन केस ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर माई स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी ऑन इन क्लास. ओके, ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. सो हेयर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपकी 2 इक्वेशंस हैं, वैसे ही 2 points 2 या 3 points लेंगे, हर एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग दिस. दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू. दीज आर सिंपल एक्सरसाइज. ओके, जस्ट ट्राई देम एंड कंप्लीट दीज क्वेश्चंस. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर. काइंडली शेयर टू ऑल अदर स्टूडेंट्स एंड share and subscribe the channel, and to help all the students of class 10, please share these videos to your near and dear ones. Thank you for watching the video. Watch the complete video till the end and understand the concept in a better way. Thank you, class.